क्या डिफरेंस है कि फौज कैसे काम करती है, फौजी कैसे काम करता है? आज जितने भी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं उनमें से एक ही पिलर आज कंट्री को बचा रहा है, दैट इज द फौज. क्या इंडिया अपना शिप बना रहा है? In the new shipbuilding policy of the government which has been declared just recently. तो सर आपने स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया है. 6 submarines were built by Mazagon Dock in collaboration with Naval Group of France. Why did you switch from merchant navy to Indian navy? और कितने साल सेलिंग के बाद ये डिसीजन आपने लिया? I got a call from my SSB, Service Selection Board. My father just told me, just go for it. क्यों खोला गया गोवा में इतना बड़ा एयरपोर्ट? टूरिज्म को अगर आपको डेवलप करना है, आपको ट्रैवल्स इंक्रीज करना है, तो आपको कनेक्टिविटी का फैक्टर माइंड में रखना होगा. कि क्या अभी भी कॉलेज से कुछ दोस्त हैं जो पूरी जिंदगी के दोस्त बन गए? वो जो फ्रेंडशिप थी ना, दैट वाज ए सेल्फलेस फ्रेंडशिप. 10 साल बाद अगर देखें तो इंडिया वुड बी प्राउड ऑफ द यूजन इंस्टीट्यूट. मुझे भी लगता है, या मैं भी, आई हैव आल्सो द ड्रीम्स कि रियल एस्टेट के अंदर लेट्स क्रिएट सम हिस्ट्री. Welcome to another episode of Fusion Radio. Today we have with us Commander Gaurav Agrawal. Welcome, sir. And Fusion founder Sheesh Ram Yadav with us. Today we are going to discuss the interesting journey of both the founders on camera and touch base on naval legacies in Goa as well as their life. So welcome, Gaurav, sir. Welcome to the podcast. Thank you, Pratik. Thank you for giving me this opportunity. For those of you who do not know, Gaurav, sir, or Commander Gaurav Agrawal is my college senior, 1985 pass out from DMIT, the same college I am in. And we are very honored to have him as our college senior. And he is one of the few ones who transitioned from Merchant Navy to Indian Navy. And we will decode more on this journey. But before that, so let's start with a very interesting question. Before a lot of you viewers watching might not know this. So tell us something about the pre-DMIT era, where you come from, what was your schooling, and how you entered DMIT. Because entering DMIT is a different story for everyone, and it's very interesting. Oh, yes. Pratik, my father was in the Indian Navy. So we got posted all over India. Bombay, Delhi, Calcutta, Visakhapatnam. I did my schooling. I think DMIT was my 10th institution, finally, including KG and nursery. DMIT was my 10th institution. You will find people, they normally may do nursery in one school and then from KG to PG they'll do in one institution. But I think I was lucky. I saw these places. I moved on. We all moved together as a family always. And in Bombay, I studied in Cathedral and John Connon School, which is a school for the elite families of Bombay. And but I think it's very good I went to Cathedral, because it is there that I think I got my grounding, that even though people may have, it is not necessary to be happy, to be rich to be happy. You can be content with what you have. And I think I learned that in Cathedral amongst all those rich people, that one can be content without being rich. So because you were not rich? I was not rich. I was the son of a naval officer. And how did you learn? Because there were rich people who were sad? There were rich people, not who were sad, but who always wanted more. Okay. And I realized I didn't want that much more. I never wanted to go to the US to study. I never wanted to go abroad for holidays, but all my friends used to go. But that's okay. I never felt out of it. I never felt out of place. I used to go to my grandfather's house, to his farm in Farrukhabad for my holidays, which was good enough. We enjoyed there more maybe than Paris or London, quite possibly. Though one may not be sure of that. Then I studied in Timpani School, Visakhapatnam also, where I can tell you the discipline was quite tight. We had a lady principal called Miss Jaraja Rao, and she kept us on the straight and the narrow always. So I still have friends from my 11th and 12th standard, and my father was posted there. So life in Vizag was very good. I did my 11th and 12th from there. I don't think I studied much, because my father by then had left the Navy and joined the Merchant Navy.
and so there was no person at home who could make me study. Plus, I had the scooter to myself. So that's how I. So you, this was about the schooling. So your father was a DMETian, if you are right? Yeah. He wasn't. In fact, I'm one of the. I'm second. I'm the first second generation DMT. Okay. Myself and Vijendra Jain, my batchmate, 81, 85, both of us 81, 85. Both our fathers were ex DMT, and we are the first of the second generation. Wow. So he was in DMT from 1953 to 1957, and he immediately joined the Indian Navy. Okay. Whereas in my case, I joined DMT after my 12th, sailed in Great Eastern, and then joined the Indian Navy. Okay. So that was a little difference there. So coming back to the question of your family again. So what was your father's roll number, if I may ask? Father's roll number was 227, 227. and mine was 3049. Oh wow. And he joined in 53. I joined in 81. Okay. Your father's still there? So he passed away in 2017. Okay. So good to know. So I guess joining DMET was a very natural call to you. It was not at all accidental. So you knew what you were getting into. Definitely, I knew what I was getting into. Since the, I think, 8th, 7th, 8th standard, I was very keen to join the Merchant Navy. But in those days, I was more keen to join the deck side and become a captain on board the ship, which is a dream for a lot of youngsters, no doubt. But then somewhere down the line, in the 8th, 9th standard, I got specs. So because my love for the sea was so great, I said, okay, if I cannot be a captain on ship, I will be an engineer. So then my target was DMET after that. So this podcast is very interesting because we have two people from different field, and we'll be basically asking same question one by one from both of them. So my next question is: a lot of people want to know the Shishram Yadav behind Eugen Infra, because there is a legacy of Times Pro which you built. But in this podcast, we'll really go back to your roots. And the same question about your schooling. So where you come from, about your family, and because you have been very, very vibrant about discussing about Times Pro legacy. But we would all like to know about your family, your roots, and your beginning. Till say we are, as of today, we are in class 12th. So from class 1 to class 12th, your journey. See, as a like a lot of other childrens in India, though I belongs to the rural India, the background of rural India. So the story starts from a small village. So I'm telling you one thing, trust on me. Lot of people from my age are surprised if I say कि I learned alphabet from the 6th standard. Means I crossed 10 years, and that time I started alphabets because I studied through the English government schools. So basically, so there is a concern to which alphabet started. We used to learn alphabet in 6th standard. Means I was 11 year plus that time. My 11 years, my 11-month son is like knows alphabet now. So this is the basic fundamental. You can also observe because I am not pretty good in speaking English. That now so that is the difference basically. But see, I being at the education, the family is like I belongs to a middle class, or you can say ki middle class or middle poor class family basically. Lower middle class family. Yeah, lower middle class family you can say. So my father and my mother both are like we have my father is a farmer by profession. So both have never gone to the school. So that is the more the important thing. They have never gone on the school, never went on school, but yes, they have some dreams. They want to make me educated. They want to make me my fulfill my wishes. So I always keep in mind one thing. As a student, I never like I never what do you use the word, I never want to be misused there. I don't want to be break their trust basically na. So whatever I have asked to them, they provided me, they supported me in spite of the resources are available or not, but they have to manage it, and they have provided as and when required. So that is a great motivation, that is a great support for me. So in my I due to this I am telling you I was premature because I have some responsibility and liabilities. So I have to be use the resources, whatever the resources they manage or they are providing me, I have to be
utilize at a maximum level or optimum level. So I have, like, in the study I was like not a much pretty like intelligent guy, but yet a middle, you can say an average student. But till the time to I like cross the 12th standard, I have some dreams, I have some big plannings. You send some big dreams in a small eyes. So luckily I started my like I did my this MBA in management, then worked with 8 years, worked with 3 private banks. After that I started my like entrepreneur career. Then like we have spent 11 years in the Times Pro, then come to this development parts. So it's like a long journey, it's a like full of struggle journey. तो आपको ये बोल सकते हैं हाँ। कि ये रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, एक गांव का लड़का जिसने क्लास 11 साल की उम्र में पहला अल्फाबेट देखा, आज वो यूनियन इंफ्रा का सीईओ है। तो ये वही स्टोरी है और ये जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही कुछ स्टोरी है। तो उसी में एक जितने भी मेरे पास न्यू जूनियर टीम मेंबर्स आते हैं उनको एक बड़ा बेसिक सी चीज़ पूछता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ ना, तुम सब कर सकते हो। बिकॉज़ आज जिस दिन आई स्टार्टेड माय करियर और यू गाइस स्टार्टेड करियर, आप मुझसे बेटर हो। यू हैव गुड क्वालिफिकेशन, यू हैव गुड कम्युनिकेशन, यू हैव गुड पर्सनैलिटी, यू हैव गुड बैकग्राउंड। सो अगर मैं कर सकता हूँ तो आई थिंक आप सब कर सकते हो। बहुत अच्छा आंसर था। और जो लोग देख रहे हैं आज इन दोनों शख्सियत से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि लाइफ में ना मर्चेंट नेवी वाले नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना आसान होता है, पर वहां पे भी जाके यू कैन अचीव इम्पॉसिबल थिंग्स इफ यू आर फोकस्ड एंड एट इट। सो बहुत बड़ा सवाल होता है कि मैं सबका आंसर बहुत सिंपल है कि जस्ट डू इट। तो दोनों ने ही किया है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, सर आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि सर आपके पहले रोल मॉडल आपके पिताजी ही होंगे, कि या कोई और थे स्टार्टिंग के रोल मॉडल? See, parents always have a very strong influence. So my father was I would say was a disciplinarian, but he insisted that we be disciplined. And so I got my sense of discipline from him. From my mother, I got my honesty. At times, my son tells me, Papa, why are you being so honest when it's not required? But I got that from my mother. कि you be honest. अगर झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी हो जाए ठीक है, क्या होगा मैक्सिमम, जब तक आप कुछ क्राइम नहीं करोगे, nothing will happen to you if you tell the truth. So I followed that. I've remained disciplined, committed, hard work for my father, and I got my honesty and straightforwardness from my mother. मुझे लगता है कि शिपीज में बहुत जनरिक रहता है कि इवन द शिपीज, आई एम सराउंडेड बाय शिपीज ओनली, जनरली झूठ नहीं बोलते हैं लोग, क्योंकि ये इन ब्लाइंड रहता है। आप शिप में क्या झूठ बोलोगे? किससे झूठ बोलोगे आप? किससे में झूठ बोलोगे आप? पानी से झूठ बोलोगे, समुद्र से? नहीं, आप क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल ये पंप सही से ओवरऑल कर दिया, हाँ, ठीक है, सो आप ना, इफ यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर एक्चुअली इंजरिंग एवरीवन इन शिप। करेक्ट। सो दैट्स मुझे तो एक ही सेलिंग में 15 दिन में समझ में आता है कि ना जहाजी झूठ नहीं बोल सकता, बहुत जहाजी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, शिपिंग में भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो एंड दैट इज समथिंग दैट गेट्स इनग्रेन इन देयर कैरेक्टर। और जब वो ट्रांजिशन करते हैं रियल लाइफ में, वहां उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लैंड में झूठ बोलना बहुत नेचुरली आता है। It's called marketing. हाँ, it's called so that is something. And let's go back. आप DMET में आ गए. Let us take us back to the first day of DMET. How was the first day in DMET? क्योंकि पहला दिन DMET का मुझे लगता है everyone remembers for rest of their life. First day was normal. मैं कलकत्ते थोड़ा पहले आ गया था, अपने लोकल गार्जियन के साथ रह रहा था। टैक्सी पकड़ी, वो एक ट्रंक बोला था उन्होंने लाने के लिए, ट्रंक ले आया था, एक सूटकेस था, वो सिर पे लांद के भगाया सीनियर्स ने हमें, फ्रॉम द फ्रंट विंग टू द रियर विंग ऑफ सीनियर हॉस्टल। एंड उसके बाद चालू हुई रैगिंग स्टार्टेड एंड इट कंटिन्यूड। सो जो लोग देख रहे हैं, रैगिंग इज अ कोड वर्ड। वो रैगिंग नहीं होती थी हमारे कॉलेज, अभी भी नहीं होती है। रैगिंग कभी नहीं हुई है, ठीक है। So, I guess that
जिसको रैगिंग बोलते हैं हम लोग, जो रैगिंग नहीं है, हाँ, that teaches us a lot of things. oh yes, नहीं नहीं, see, ragging to my mind, legal illegal, let's forget that part. Ragging is very important to inculcate in the juniors the correct approach to life. It can get nasty. It should not get nasty. That depends on the maturity of the seniors. But I've seen people coming from completely rural backgrounds, not knowing literally a word of English, and it is due to the ragging. It is actually due to the ragging where the seniors insist that you speak in English. The seniors insist that you learn how to use a fork and knife. Because if they don't insist, you will not learn. These days, I have been to DMET recently. They don't know how to eat with the fork and knife because nobody's insisting that they know that. We were forced to eat with a fork and knife. We could not finish our food. If you didn't eat with fork and knife, you went hungry. So these are the good parts of ragging. They will ensure you are correctly turned out in your uniform. Your hair is smartly turned out. Your room is always clean. All these are the good parts. Yes, the bad parts are there, the hitting and the things like that. But one has to take both in their stride. And finally, at the end of it, it does toughen you up to a large extent. No doubt. 4 साल की जर्नी कैसी थी आपकी DMET? 4 What's the साल journey like? Generally क्या होता है, we make lifelong friends in DMET. So is it true for you as well? Oh yes, there is no doubt. DMET की जो फ्रेंडशिप, वो जो 4 साल में जो फ्रेंडशिप बनती है, वो बहुत, आई डोंट थिंक, if I remove my DMET friends, I will have very few friends left. Whether it is my seniors or juniors or batchmates from DMET, if I remove that area of my friendship, I will have very few good friends left. There is no doubt. You make your best friends in DMET. So let's take back, switch question to half DMETian sitting on table. Shisharam ji, who has been interacting with DMETians for last 2 years now. So आपकी कॉलेज लाइफ सर जो थी, कि क्या अभी भी कॉलेज से कुछ दोस्त हैं जो पूरी जिंदगी के दोस्त बन गए, कि थोड़ा मुझे लगता है कि बाकी कॉलेजेस में थोड़ा डिफरेंट रहता है? देखिए, स्कूल और कॉलेज की लाइफ डेफिनेटली उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। द डेज वो एक अलग ही दुनिया होती है। सो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप एक देखेंगे कि आपका, अगर आप एक फ्रेंड्स की लिस्ट कैरी करेंगे और उनमें आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, तो मुझे लगता है कि स्कूल एंड कॉलेज की ड्यूरेशन के या उस टाइम के फ्रेंड एंड दोस्त आपके क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट में टॉप पे रहेंगे। सो जो आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री करके जो फ्रेंड्स बनाए और आपके स्कूल एंड कॉलेज के हैं, सो मुझे लगता है जो ओल्ड इज गोल्ड, तो जितने पुराने आपके दोस्त हैं वो आपकी जरूर लेगेसी है, वो आपके साथ चले आ रहे होंगे। Very well said. I guess that is true in most of our life. सबकी लाइफ के लिए वही सबसे बड़ा सच है। क्योंकि एक्चुअली वो जो फ्रेंडशिप थी ना, दैट वाज ए सेल्फलेस फ्रेंडशिप। उस टाइम पे हमें किसी से कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, वो सब मायने नहीं रखती थी वो चीजें ना। तो वो बड़े क्लीन, नीट एंड क्लीन, मतलब हार्ट से की हुई दोस्ती थी वो। हाँ, तो हाँ। जैसे लड़कों की दोस्ती में भाई ने बोला मारना है तो हाँ, तो मारना है, मारना है। अब कौन गलत है कौन सही है उस टाइम पे समझ नहीं होती थी। मुझे पता नहीं कि आप में DMET में ऐसा हुआ था कि नहीं। आई हैव बीन लकी दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ फिजिकल ब्रॉल थ्रूआउट स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। आई वुड लाइक टू नो कि गौरव सर, आप क्या इतने कभी लकी थे कि इस चीज का कि भाई को बोला मारना है तो गौरव मार? फिजिकल ब्रॉल तो होता ही है, लड़कों में तो होता ही है, स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, उसके पहले और आगे पीछे भी। नहीं, हम लोग तो सीनियर के भी ब्रॉल में बहुत सपोर्ट करते थे। सो कई बार हमने भी पत्थर मारा है साहब दिन जूनियर हॉस्टल से। क्या आपके समय हुआ था कि नहीं कि आप रोड पे पत्थर मार रहे हो? नहीं नहीं, हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो 4 years पीसफुल थे विद द पीपल अराउंड, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो क्या आपके समय सर स्कूलिंग डेज, क्योंकि हरियाणा में अगर आपने किया है तो वो तो पहले होता है, बाद में हम तो वो वाले बच्चे रहे हैं, हम कभी वो वाले स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने टीचर्स की विंडो पे भी पत्थर मारे हैं। बट अब लगता है कि दैट वाज नॉट ए लाइक राइट अप्रोच, तो ये सब नहीं करना चाहिए था। बट उस टाइम नहीं, ठीक है, वो करके ही समझ आता है, जिसने कभी किया ही नहीं वो क्या समझेगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैंने क्लासरूम में से इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद खिड़की में से जंप मारा है। बाहर कोई और इंस्ट्रक्टर था, उसने बोला वापस जाओ, और मैं वापस भी गया और फिर भी इंस्ट्रक्टर को मालूम नहीं पड़ा कि मैं वापस आ गया।
इतना मैं बोल सकता हूँ So खिड़की के बारे में। that is a very interesting segment. पर मैं जो लोग ये देख रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि अहिंसा फॉलो करें. इट इज नॉट ए ग्रेट थिंग. ठीक. आई एग्री। एंड बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ का. वी हैव डिस्कस दिस इन लॉट ऑफ 2 times आई गेस. मैंने 2 बार रिपीटेडली आपसे क्वेश्चन पूछा था, ट्राइंग टू फाइंड अ डिफरेंट आंसर. मैं तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाई डिड यू स्विच फ्रॉम मर्चेंट नेवी टू इंडियन नेवी, और Indian- कितने साल सेलिंग के बाद ये डिसीजन आपने लिया? उन दिनों प्रतीक 18 months सी टाइम वाज रिक्वायर्ड फॉर सेकंड एग्जाम, फोर्थ क्लास एग्जामिनेशन नहीं था। तो मैंने ऑलमोस्ट 16.5 months कर लिए थे मेरे फर्स्ट जहाज पे। एंड व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, माय फादर जस्ट टोल्ड मी जस्ट गो फॉर इट, डोंट ज्वाइन, जस्ट गो फॉर इट। ही अप्लाइड ऑन माय बिहाफ। ठीक है, तो अब फादर ने बोला तो मन डज How इट। old were you? Like 25 maybe at that? No, no. At that time I was 23 and a half. Okay. And father ने बोला चले जाओ, तो मैं चला गया. I took leave and I went. And I cleared SSB. Clear हो गया. अब XDMT थे, SSB नहीं क्लियर करेंगे, ऐसा कभी हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता. तो क्लियर कर दिया. फिर went back on another ship, finished my time, started studying. And जो सेकंड टाइम था मैं गया था जहाज पे, बहुत मैं बोर हो गया था फॉर सम रीजन. प्लस वो पढ़ाई आ गई सेकंड्स की. तो सेकंड्स की पढ़ाई और जो मैं शिप पे बहुत मोनोटोनस हो जाता है. एक्चुअली इफ यू सी ना, मर्चेंट नेवी इज वेरी मोनोटोनस. आप पीपल हु हैव सेल्ड फॉर 20-30 years दे विल आल्सो टेल यू इट्स मोनोटोनस. पैसा अच्छा है और सब कुछ ठीक है, बट मोनोटनी बहुत है. सब मेरे लिए वो मोनोटनी अच्छी नहीं है. और एंड प्लस पढ़ाई. तो मैंने, और दीदी का कॉल आ गया, तो मैंने बोला मैं क्या ये पढ़ाई कर रहा हूँ और क्या आई गो बैक टू दैट सेम प्लेस वेयर एक महीना एंकरेज पे खड़े हो, कुछ नहीं हो रहा है, बस खड़े हो एंकरेज पे. तो नेवी पे कौन सा आप जाके पाकिस्तान को हाँ, ढूंढ रहे थे? मैं बताता हूँ. तो आई जॉइन द इंडियन नेवी. अब इंडियन नेवी में 22 साल में आप बिलीव नहीं करोगे, आई सर्व्ड ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ शिप. ओके. स्टीम शिप, गैस टर्बाइन शिप, डीजल शिप. डीजल शिप में भी रेडियल इंजन, V type engine. Then I worked in overseeing team in Bombay. I worked in a testing and tuning team. I worked in ship repair. I worked in headquarters. So जो experience होता है ना, plus I was in I was in Port Blair when the tsunami hit. So an integrated relief command was formed for the to focus on the relief So operation. how was that moment? आप सुनामी के समय वो पे तो that was an amazing experience where everybody had given up and the Forge was called in. And the way the Forge took charge of the situation and ensured that relief supplies were taken to the furthest corner of all the islands, it was amazing. And I got to see the bureaucracy from a very close standpoint, how they work and how the Forge works and what is the difference. जानना चाहता हूँ कि अभी शीशराम जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, मैं स्टार्टअप वर्ल्ड से हूँ, स्टार्टअप स्लैश कॉर्पोरेट. आप नेवल बैकग्राउंड से हो, तो क्या डिफरेंस? आप कॉर्पोरेट के साथ भी काम करते हो, सो हाउ, क्या डिफरेंस है कि फौज कैसे काम करती है, फौजी कैसे काम करता है? टेकिंग एग्जांपल ऑफ सुनामी ब्यूरोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट, क्या डिफरेंस आपको लगता है कि दोनों में? वहां से कुछ लेसन हम लोग सीख लें, सो द कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी थ्राइव करने लगेगा बहुत. सी आई में आप बोलोगे क्योंकि मैं फौजी हूँ, हाँ. मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि जो जिसको बोलते हैं ना बैस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी, आज जितने भी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं उनमें से एक ही पिलर आज कंट्री को बचा रहा है, दैट इज द फौज. इट इज एपॉलिटिकल. द मिनट द गवर्नमेंट ट्राइज टू पॉलिटिसाइज इट, वी विल बिकम अनदर पाकिस्तान. द फौज में जो सेल्फलेस काम होता है, जो कमिटमेंट है, सिंसेरिटी है, ऑनेस्टी है, फिजिकल ऑनेस्टी, वो कहीं पर नहीं है. बिकॉज एवरीबडी एल्स इज प्रेशराइज्ड बाय वेरियस प्रेशर्स. फौज इज बाय एंड लार्ज लेफ्ट अनटच्ड. Pressures are coming in, but the level of commitment, selflessness, and honesty is by far highest in the Forge than anywhere else.
And how can we, chalo, let's take example. How can we inculcate that in a corporate like, say, Eugen Infra? It can be inculcated. Ethics are there. You have a code of ethics. You have a ombudsman. Hmm. You ensure that the ethics are followed, especially in selling. That would be your main thing. Yes. And I don't believe. See, there is pressure on us to, as the chief engineer of a naval ship, I have to sail. Mhm. When the call comes, I have to sail. But it should not. How much it would? It should be this cost of what? That depends. I should not endanger lives, obviously. So one should have the courage of conviction to stand up and say, "No, sir, I cannot sail today." And I've said that, okay, sir, I cannot sail today. Today, if we sail, my main engine will go for a 6. I stood up and said that to an outside authority also. And that was appreciated. So, similarly, if you have that culture in corporate where a person can stand up and say, no, I cannot do this job because of this, then the management has to take cognizance of that. सो आई एम जनरली क्या है कि मुझे पैरेलल्स दिख रहे हैं दोनों के, आपके दोनों ही कैरेक्टर में, शीशराम जी के और गौरव जी के कैरेक्टर में. तो वन एग्जांपल व्हिच गौरव सर हैज मेंशन दैट कि ऑनेस्टी एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर, इवन इफ यू आर लाइक सेलिंग एंड सेलिंग, दो पैरेलल पाथ है. सो आई हैव ऑब्जर्व्ड शीशराम फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर, क्योंकि प्री यूजेन and pre-DMET club, we were in the same office for few years, same building, एक ही बिल्डिंग में काम करते थे. एंड थोड़ा सा मुझे आशीष राम जी भी डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि भाई सामने वाले को बहुत ज्यादा सच बताते हैं, जबकि मैंने रियल एस्टेट में इतना सच बोलने वाला बंदा भी नहीं देखा. कई बार मुझे भी घबराहट हो जाती है उन सच से. एंड मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सेल्स आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हो अपनी, सच बता बता. सो जनरली ये क्या वही गांव की परवरिश है जो बोलती है यार सच बोले काम करते हैं क्या? कि रियल एस्टेट में क्या होता है कि अब इवन ऑडियंस इज वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड व्हेन दे आर टेकिंग डिसीजन. तो झूठ बोल के तो आपको पता है कि 5 मिनट पे गूगल कर लेगा तो सब पता चल जाएगा कि क्या रीजन है कि तो बेसिकली ये वैल्यूज ना ये एक दिन या 2 दिन की नहीं होती, ये आपको मतलब इट्स ईयर्स, जब से आप कहाँ से आपकी परवरिश हुई है, तो बेसिकली वो वैल्यूज वहीं से आपके अंदर यू हैव टू बी इनकॉर्पोरेट दैट ना, तो वो तब से स्टार्ट होती है. सो ऐसा नहीं है कि अगर आप से ये कहो कि यार मुझे सेल्स में कुछ चीज़ों को एस्केलेट करके ना, इन्फ्लेट करके ना, या झूठ बोल करके सेल्स फास्ट हो सकती है और सच्चाई के साथ सेल्स नहीं होती, ऐसा नहीं है. देखो, फॉर एग्जांपल मैं 1 करोड़ रुपए का आपकी एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ एंड गौरव जी इज बाइंग. सो अगर मैं ये सोचूं कि उनको क्या 1 करोड़ रुपए का जो बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी, क्या उनके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है? दे हैव एवरीथिंग. वो ठीक है, कई बार मुझे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट बैक ऑफ द माइंड ये है कि यार इस बंदे की क्या इंटेंशन, क्या चाहते हैं. आप जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ, जितनी इंटीग्रिटी के साथ अगर कम्युनिकेशन को फेयरली रखते हो, आगे वाला उतना ही लेता है. अगर मैंने कहा कि जी मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर आउट ऑफ 10 ही इज लाइक हैविंग 8 मार्क्स, ये 2 इसमें कमियां हैं, 2 प्रोज हैं एंड लेट्स 8 प्रोज एंड 2 कॉन्स है, बट स्टिल इट्स एन लाइक माय मोस्ट प्रेफर्ड और मोस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट. सो आप कहोगे ठीक है यार, आप मुझे अगर आई थिंक कि आपने कंपैरिजन करके मुझे सजेस्ट किया है, तो इट्स लाइक गुड आइडिया, तो मैं ठीक है उस चीज़ को समझता हूँ. विद 2 कॉन्स आई एम ओके टू बाय इट. सो मतलब एंड ऑफ द डे अगर मैं कहूँ कि आप जितनी सिंपलिसिटी के साथ, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सेल करोगे, आपके सेल अच्छे होंगे. हाँ, एक ज़रूर है कि सेल्स के अंदर कई बार क्या होता है कि बिकॉज़ लाइक वी आर सेलिंग ए ड्रीम्स और फ्यूचरिस्टिक थिंग्स. आज आज एक प्रोडक्ट ऐसा है रियल एस्टेट का जो 4 साल के बाद, 3 साल के बाद डिलीवर होने वाला है. अब उस मार्केट बिकॉज़ इट्स अनसर्टेन फ्यूचरिस्टिक थिंग है, वो ना मेरे कंट्रोल में ना किसी मार्केट. तो रिजल्ट्स कैन बी आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स में बी डिफरेंट, कि जो हमारा प्रोजेक्टेड जो एस्टिमेशंस था, एक्सपेक्टेशंस थी, माइट बी वो उस लेवल तक नहीं मेट करता है. कभी उससे बिलो भी हो सकता है, कभी उससे हाई भी हो सकता है. सो वो गैप की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहती है. उसमें ना मैं झूठ हूँ, ना कोई और वो है, तो दैट कैन बी पॉसिबल. प्लस सेल्स है तो हल्का-फुल्का कई बार लोग एक जनरल से है कि यार थोड़ा बहुत मसाला लगाना स्टार्ट है, ज़रूरी है, मतलब मसाला लगाना ज़रूरी है, और मसाला मेरा ये मानना है मसाला उतना ही लगाना ज़रूरी है जितना टेस्ट खराब ना हो. अगर आपने मसाला ज़्यादा लगा दिया तो भी आपका टेस्ट खराब कर देगा, हल्का हाज़मा खराब करेगा. प्लस आई वुड लाइक टू ऐड, रिपीट कस्टमर किसके पास जाएगा? जहां पर उसको धोखा मिला है या जहां पर उसको अच्छा डील मिला है. और रिपीट कस्टमर का जो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है ना,
is 5 times. You are saving 5 times the effort of getting the repeat customer by being honest and giving a good deal. मैं कई बार ये अपने साथियों को, जो मेरे बैचमेट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जा रहे हैं, उनको ना यही नहीं समझ में आता है। सो दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने बोला ये वो शॉर्टकट नहीं है, नहीं है। ये वही 5th इंजीनियर 4th इंजीनियर की चढ़ाई है। बिजनेस पे 10-12 साल लगेगा कुछ भी बिल्ड करने के लिए, एंड सडनली तुम चीफ इंजीनियर नहीं बन पाओगे, एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी टफ टू गेट बिजनेस रनिंग। तो इससे बहुत बड़ी मैराथन होती है, चाहे वो, एंड इट इज सेम जैसी सेलिंग की मैराथन है। 5th इंजीनियर से स्टार्ट करते हो, आप चीफ इंजीनियर बनते हो, देन यू सेल फॉर सम ईयर। वो 10 से 12 साल की ना मैराथन है। तो आज शीशराम जी यहाँ पे हैं, उनकी 13-14 साल की मैराथन लड़ चुके हैं, लड़े जा रहे हैं। और आज अगर काफी मेरे बैचमेट बोलते हैं तुम्हारा तो सब आसान हो जाता है, हर काम कुछ भी करते हो, मैं बोला भाई आई लेफ्ट सेलिंग आफ्टर सेलिंग वंस, सो आई हैव बीन एंटरप्रेन्योर सिंस देन। उसको भी आज 14 साल हो गया। तो भाई, तो वो तुम 14 साल की मेरी घिसाई तो भूल गए हो, अब तो वो भी देखो ना कि 14 साल हम इतना रगड़े हैं कि, एंड वो, सो देयर हैज बीन नॉट अ सिंगल हॉलिडे इन शीशराम्स लाइफ सिंस आई मेट हिम। 4-5 साल उसको भी हो गया, मैंने नहीं देखा जब कभी। से कैरियर, जब से हमने एंटरप्रेन्योर कैरियर स्टार्ट किया हुआ है, वीकली ऑफ क्या होता है, हॉलिडे क्या होता है, वी नेवर सीन। सो That I can understand. एंड मेरी वाइफ की सबसे बड़ी कंप्लेन है कि एक दिन छुट्टी ले लो। सो एंड दैट इज समथिंग दैट वी ऑल सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेटर गुड, Yeah. चाहे वो नेशन के लिए हो। एंड I think entrepreneurs are also like soldiers. We are building the nation from within. Oh yes. And not There is fighting no the doubt. war, but we are bringing in capital. We are paying taxes. We are making sure that our nation has enough wealth to fight. Coming back to very interesting question that Goa has lot of very rich naval history. मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने भी अभी बोला कि आप 2 साल गोवा में थे, तो इन जनरल की कुछ हम जान चाहते हैं, कुछ समथिंग एक्साइटिंग अबाउट दैट हिस्ट्री, बिकॉज आवर प्रोजेक्ट इज इन गोवा। देखो, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, द बेस्ट 2.5 years ऑफ माई लाइफ वॉज इन गोवा। एक तो जगह वैसी है, ओके, प्लस मे बी माई अपॉइंटमेंट देयर वाज सच दैट आई रियली एंजॉयड दैट अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कहाँ पे थी फिर? I was in a unit called Machinery Trials Unit. Okay. So we were attached to Goa Shipyard Limited, and we used to do the trials of the naval ships under construction there. So it was a very challenging appointment. It was fun also. It was something new which I was doing, and I had my DMT friends also in Goa. So it was a very good mix. And Goa के लोग ही, गोवा में जो एक environment है ना, it कुछ मजा आ गया. A lot of people visited me when I was in Goa. Every holidays, somebody or the other used to be staying with us. In fact, 1-2 महीने के बाद I realized कि भैया जब मेरा नेबर छुट्टी पे जा रहा है, और मैं उससे चाबी ले लेता था कि भाई तो छुट्टी पे जा रहा है, चाबी दे दे मुझे, कोई ना कोई टपक पड़ेगा। से नेवल एरिया था जहाँ पे? हाँ, नेवल एरिया था, एंड दिस गिविंग ऑफ कीज एंड ऑल इज फेयरली नॉर्मल। आके कोई रह गया 2 हफ्ते के लिए, नो वन माइंड्स। It's part of life. It's that sort of part of naval life. It's part of naval life. It's bonding, you know. It's that kind of, he trusts me, I trust him. He will not do anything with my house which will cause a problem later on. It's like that. As part of our like, I have traveled all over Goa. It's a beautiful place. It's a beautiful and part of ये मैं कुछ जानना चाहता हूँ, if so we have been doing our own research and real estate research अलग चीज है. A lot of shipping related investment is coming in Goa right now. Yes. मेरा क्वेश्चन है कि कई बार तो हमारे भी समझ में नहीं आता why it is happening. So my question is why it is happening, and that belt only, चाहे वो कारवार की बेल्ट हो, उससे रिलेटेड पूरा गोवा तक, क्या इंडिया अपना शिप बना रहा है, बनाएगा? So why the investments, and a lot of significant investment is coming from allied shipping companies, जो directly ship में नहीं है. For example, Siemens has invested in 600 crores, I guess, if I'm right. Siemens has a very big plant in Varna, Goa. Okay. Varna. And a lot of companies are coming up there because Goa government is giving a lot of incentives. In the new shipbuilding policy of the government, which has been declared just
recently, the full west coast, right? Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, all of them will be benefited. And Goa में culture तो है ही shipping का. Shipyards are there in Goa. Goa shipyard is there. If you go down the coast, Chogle Chogle is there. shipyard. I've forgotten. Modest is there. Okay. Damodar is there. So many shipyards are there along the coast. If you go down, Waterway shipyard is there in just down the But coast. India is never known to build merchant ships. तो क्या ये चेंज होने वाली है स्टोरी? India has always been known to build ships. But not merchant ships. हाँ. In those days, there were merchant ships also, but it is just that maybe in the 20th century, we sort of went down because of our, you can call it labor policy or industrial policy of our license Raj. Mhm. But with the rich maritime history that we have and the coastline which we have, we should be a shipbuilding nation like China, Japan, and Korea. Nothing less than that. So is it going to change in the next decade? In my opinion, it is going to change because this government is very clear that it is going to draw its lessons from the roots from history. So काफी जैसे जिस आपने कंपनी की बात की है, चलो नाम ले लेते हैं, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी सर ने कैरियर स्टार्ट किया, तो मैंने सुना है, इट इज नॉट कंफर्म येट, कि ग्रेट ईस्टर्न के ने बहुत बड़ा एक अमाउंट एफडी करा के रखा हुआ है, जिसको वो लोग गवर्नमेंट का भी प्रेशर है कि शिप बिल्डिंग में इस्तेमाल करे, न्यू शिप बिल्डिंग में. एंड इज दैट ट्रू? Great No, Eastern. I cannot say whether it's true or not, but it's very much possible that they're going to go into shipbuilding. Because a lot of people are waiting to go into shipbuilding. Okay. And why not? And a lot of foreign companies are coming in to collaborate with Indian shipyards so that we become efficient from the word go. Greenfield shipyards will come all along the east coast and west coast now. Okay. And like the government had said, port-led prosperity, you will now have shipyard-led prosperity in various pockets along the coasts. I guess Karwar is one example of that, जहाँ पे real estate price have skyrocketed. Yes, but that is mainly because of naval base. Yeah. That is because of the naval base. And I guess Karwar is just 2 hours away from our site. 80 Yeah, kilometers. 80 kilometers. Karwar is a good place. And it's being developed very well because of naval base also. And any thing like a naval base which comes up needs a lot of industries and services. Industrial service. So sir, आपने स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया है इंडिया के. So if it is okay to share something about your learnings from that program, and what was that program? See, the Scorpion 6 submarines were built by Mazagon Dock in collaboration with Naval Group of France. These were the Scorpion submarines, and Mazagon Dock is the only yard in the company, is the only shipyard in the company to build submarines so far. Nobody else has built except the Navy itself has built the nuclear submarine. काफी लोग जानते नहीं कि मैज़गॉन डॉक के बारे में, but there is lot of naval stories which we heard. कभी ना कभी कोई ना कोई हमारे कॉलेज का मैज़गॉन डॉक में पोस्टेड था, चाहे वो अभी के डायरेक्टर हों, चाहे फॉर्मर डायरेक्टर हों. लॉट ऑफ हैव कम थ्रू मैज़गॉन डॉक. तो व्हाट इज मैज़गॉन डॉक फॉर पीपल हु डू नॉट नो? अच्छा, Mazagon Dock used to have apprentice training first, so Okay. a lot of people from DMT have worked in Mazagon Docks from that point of view. Mazagon Dock has a rich history of maybe 375 years when the Vadias built their ships in Bombay. It is that old, and in fact, that oldest dry dock in India is still there, still operational. It's the oldest operational dry dock in India, and it builds frigates, destroyers, submarines for the Indian Navy. And it would be correct to call it the shipbuilders to the nation, Mazagon Docks. No doubt in that. Are they going to ramp up in future? Oh yes, they are going to ramp up in future. They've gone in for commercial ships also. They will go for the new generation destroyers. They should be getting the orders for the next class of submarines, the P-75I as it is being called. Okay. They are building a floating dry dock. So many things. मेरा क्वेश्चन भी यही है शीशराम जी से अगला, क्योंकि सो एज आउटसाइडर अगर मैं देखूं, गोवा में ही 4th सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट खोल दिया गया. मोपा एयरपोर्ट इज द
एंड वो कहीं भी हो सकता था, वो बैंगलोर भी हो सकता था, एक बड़ा एयरपोर्ट चाहिए था, हर सिटी को चाहिए कि एक तो क्यों खोला गया गोवा में इतना बड़ा एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि you being a realtor, you also have idea कि lot of shipping related investment is coming in. People are buying land in bulk, shipping companies. So थोड़ा क्या इनसाइड स्टोरी आप बता सकते हो कि क्या हो रहा है वहां पे, देखिए जस्ट कि जो अभी तक नहीं पता है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनके लिए। बेसिकली सी गोवा इज नोन फॉर टूरिज्म। सो टूरिज्म को अगर आपको डेवलप करना है, आपको ट्रैवल्स इंक्रीज करना है, सो आपको कनेक्टिविटी का फैक्टर माइंड में रखना होगा। सो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिफोर मोपा या लाइक बिफोर 2 years बैक, गोवा है वन एयरपोर्ट एंड दैट इज लाइक नेवल एयरपोर्ट डेवलप बाय द नेवल। So restricted तो flying. एक रेस्ट्रिक्टेड फ्लाइंग था, रेस्ट्रिक्टेड प्रोटोकॉल था, तो एक सिविल लाइक एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। प्लस कनेक्टिविटी को और थोड़ा स्मूथ करने के लिए और बेटर करने के लिए, तो इट वाज ए गुड आइडिया कि अब एक बैलेंसिंग हो गई दैट जब ओल्ड वन वाज इन साउथ, ये अभी नॉर्थ में आ गया है। प्लस इट ऑल्सो कैटर्स टू द महाराष्ट्र का जो वो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट है, उसको भी बड़े अच्छे से कनेक्ट करता है एंड दैट इज एडजॉइनिंग टू दैट। जैसे आपका दिल्ली आईजीआई है दैट इज क्लोज टू गुड़गांव और हरियाणा, ऐसे ही वो भी क्लोज टू महाराष्ट्र और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। सो ड्यू टू दिस लाइक कनेक्टिविटी, अगर आप नंबर्स और डेटाज पे जाओगे ट्रैवलर्स का, सो गोवा हैव क्रॉस लाइक 1 CR प्लस टूरिस्ट इन लास्ट ईयर ओनली 24 ओनली। और इस साल एक्सपेक्टेड है कि मतलब 12 to 15% का बेर मिनिमम उस पर इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है। तो मतलब 1.5 1.20 CR के आसपास टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लाइक रीच गोवा। सो वो रीजन वही है कि टूरिज्म बढ़ रहा है, तो एरो सिटी क्यों बना रहे हैं वो लोग? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन एरो सिटीज एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी तक जो गोवा का आइडिया था या जो गोवा गवर्नमेंट का वो था कि टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इज द ओनली इनकम, ठीक है। अब गोवा गवर्नमेंट भी इज लाइक फोकसिंग ऑन इकोनॉमी पार्ट, अदर सेक्टर्स, लाइक वो आईटी को थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं, दे वांट टू बी दिस शिपयार्ड को डेवलप करना चाहते हैं, दे वांट टू बी ब्रिंग सम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो इसकी वजह से आपको कनेक्टिविटी का रोल प्लस प्ले करता है, प्लस एरोसिटी का भी रोल प्ले करता है उसके अंदर ना। सो बिकॉज अगर शॉर्ट टर्म ट्रैवलर्स है, बिकॉज अभी तक गोवा में आपको लगता है यार सिर्फ ना ट्रैवल के लिए जा रहा है बंदा, हॉलीडे के लिए जा रहा है, वेकेशन के लिए जा रहा है। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर अदर पर्पसेस के जाना है, बिजनेस ट्रैवल के पर्पसेस से जाना है, लॉट ऑफ कन्वोकेशंस एंड इवेंट्स आर हैपनिंग इन गोवा, तो उसको भी पार्ट कर रहे हैं बिकॉज 35 प्लस 5 स्टार होटल्स आर ऑपरेटिंग इन गोवा। सो कनेक्टिविटी डेफिनेटली लाइक एक वाइटल रोल होता है। और मुझे लगता है मोपा आने के बाद में वो उसका रिजल्ट दिख भी रहा है। और डाउन द लाइन बिकॉज सिंस इट्स ओनली 2 year old और उसमें भी अभी इंटरनेशनल ट्रैवल्स और इमिग्रेशन वगैरह सब शिफ्टिंग हो रहा है। सो आने वाले टाइम में इट विल बूस्ट द लाइक टूरिज्म एंड ट्रैवल टू द गोवा। और उसका साइड इम्पैक्ट होता है कि वंस यू लाइक यू हैव अ कनेक्टिविटी, सो रियल इस्टेट तो डायरेक्टली उसका बेनिफिशियरी है कि जहाँ से इधर कोई भी कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो उसका रियल इस्टेट प्राइसेस पे और डिमांड पे इम्पैक्ट आता है। आईटी में इंडिया की खासियत क्या है अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन्स पार्ट ऑफ इट? एंड गोवा में क्या है? इट इज इंग्लिश। गोवा की सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी तो है, इंग्लिश। यार in Goa like everyone can speak fluent English. Yes. And education is people are very educated there. Yeah. The literacy rate is very high. So IT will get a natural fillip. Okay. I guess that may be a reason of developing IT infrastructure. Software, whatever. Yes. Manpower चाहिए उनको भी. Post retirement of Navy, you have been working with like Advait. So what does Advait does? What is it? Because we know a lot of things, but we would like to hear from you as well, and the audience would love to hear from you. What is your new innings on so that? You were talking about entrepreneurship. Now the Indian government has decided to use exactly this passion for entrepreneurship in the in India to push its agenda in the defense sector, that is Make in India and Atmanirbhar Bharat. Up till now, if you see, the defense sector was sort of closed. Mainly the PSUs were there and maybe some big companies were there. But the government realized that this is not the way to become self-sufficient in defense. You have to get the entrepreneur, the Indian entrepreneur inside the defense sector. So they opened the floodgates, so to say. They opened the gates for the entrepreneur to come and take part in the defense story of India. This is where Advait comes in.
because negotiating the manufacturing part in defense is not a very easy path. It's a little convoluted, it's a little difficult. So this is where we come in. We help entrepreneurs, small companies, big companies, whatever, who want to get into defense. We help them in their efforts. We guide them basically. मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि यू आर अभी तक जहां मुझे लगा है यू आर पैशनेट पैट्रियट सो हाउ डू यू सी यूजेन इन इंडिया स्टोरी एंड अ ग्लोबल स्टोरी क्या देखते हैं हम लोग कि अगर 10 साल बाद अगर देखें तो इंडिया विल बी प्राउड ऑफ यूजेन स्टोरी देखिए सी एज ए एंटरप्रेन्योर हर एंटरप्रेन्योर हैव सम ड्रीम्स सो मुझे भी लगता है या मैं भी आई हैव आल्सो द ड्रीम्स कि रियल एस्टेट के अंदर लेट्स क्रिएट सम हिस्ट्री इन सेंस ऑफ कि आपको एडवांस डेवलपमेंट करना हाई क्वालिटी का डेवलपमेंट लेकर के आना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर लेकर के आना सो प्लस एक फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक लाइक कॉमर्शियल अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ से वी वांट कि वी वी वांट टू बी द लाइक वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर सो अब उसके लिए अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना है अपना प्रोडक्ट को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज इंप्रूव करना है सो वी आर डूइंग रेगुलरली ऑन दैट I'll this thing about world thing. Now, up till now, we had a lot of defense imports, right? Why are we importing things from outside? We should be able to. We have the capability and the capacity and the brilliance of people here in India itself. All the arms, armaments, sensors, electronics, whatever you call it, it is. If you go to NASA, there are Indians in NASA. There are no Americans in ISRO. But we have beaten NASA. ISRO has beaten NASA at their own game. Similarly, in the defense field also, we can do much, much more, and we should be able to make in India and export outside. And this is what Advait is trying to do. Be part of that process of ensuring that the imports in defense to India are minimized, and we make more and more in India and make for the global market. This is exactly what the present day government wants. मुझे भी आई वांट टू ऐड ऑन दिस मुझे भी लगता है एज ए जनरल नोट स्पेसिफिक मतलब आई एम नॉट कंफर्म अबाउट द नंबर्स पर मुझे लगता है कि जितना भी हमारा डिफेंस का बजट है उसका मेजर पार्ट जो है दैट गोज टू इंपोर्ट द लाइक एम्युनिशन एंड आर्म्स Correct. सो ऐसा क्यों है दैट कैन बी लाइक Done पॉसिबल here itself. लाइक राइटली सेड आज मतलब अगर इफ यू आई एम टॉकिंग अबाउट द कि एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर प्लेन चाहिए जहाज चाहिए तो या तो बोइंग है आपके पास में या एयरबस है दो ही वो हैं आपके पास में आपको AK-47 चाहिए आपको फाइटर जेट चाहिए आपको रफाल चाहिए आप हर उस चीज के लिए नहीं और डिपेंड ऑन लाइक इंपोर्ट्स मैन यू नेवर नो कि वो तो सामने वाले को ही मिल रहा है वही चीज वही चीज़ सामने अगर वाले को आप मिल नहीं बनाओगे तो वही चीज सामने वाले को ही मिलती है एग्जैक्टली. सबको मिल रहा हो दैट इज ओपन मार्केट बट आप तो क्लोजली काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इफ वी आर ऑन द राइट पाथ तो वी मस्ट विदाउट बीइंग पॉलिटिकल इफ आई थिंक वी आर द राइट पाथ तो वी मस्ट बी इन द राइट पाथ ऑफ making these kind of things Yes. in house. You see what the government has done to the ordnance factories. Instead of each ordnance factory being standalone, they've been grouped as per what their products are, and they've been made into a company so that they're accountable. So these are all very forward-looking measures. And the emphasis on indigenization of equipment there's a big thrust on it, and the Indian entrepreneur is coming forward. He is coming forward and taking up that challenge in all fields, whether it is equipment, whether it's electronics, whether it's mechanical, hydraulic, anything. So you have been, apart from this, thank you for this answer, and I would like to add on one thing. So we have been interacting for last few years. So जिससे बात करो, everyone knows you. I hope in a good स्टैंडर्ड आंसर है कि अगर कहीं मुझे किससे बात भी करनी होती किसी शिपिंग कंपनी के एमडी से भी नंबर है मेरा नंबर कहाँ से मिला गौरव सर ने दिया है तो कई बार तो इसको एंड you have been working with alumni and alumni engagement for more than 2 decades if I'm right or more than a decade, 15 years now. 15 years now. So what excites you for that and what keeps you motivated क्योंकि ये ना मैं तो 2-3 साल से एक्टिव हूँ बहुत सेल्फलेस काम है ये और
बहुत कई बार तो मैं खुद इरिटेटेड हो जाता हूँ ऐसा। So what keeps you going? Maybe we can learn. A lot of us can learn from this. Pratik, thank you for saying for those kind words, but I have always believed in giving back. Even when I was in the Navy, I was part of the Parents Teacher Association, uh, Naval Officer Institute ka secretary. All these are voluntary jobs. So I become editor of the magazine. So I've always done these extra things. I always believe that one must keep doing them. And when I got a chance to get involved, once I came back to Bombay in 2006, I came back to Bombay in 2008 and 9. I started getting involved with the Institute of Marine Engineers and the DMT Mary Excates Association. I found that these are very good outlets for doing. You can achieve a lot, especially in the for the alumni of our beloved alma mater. I started getting involved and I started interacting with the cadets. And what do you get out of it? You feel good. Simple. You feel good. You feel you've done something. कोई बच्चा आपके पास आया, you could get him a job. आपने उसको कुछ पैसे दे दिए just to tide over till next month. He don't have to ask his parents, or you help him in some other way. Whatever it is, you have to give back to society, and there is no bigger क्या बोलते हैं blessing than being able to do something for your alma mater. अगर आप अपने कॉलेज के लिए कुछ कर सकते हो तो फिर So काफी वो मैं डिस्कशन अभी सबके लिए बताना चाहूंगा कि शीश राम एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग बिकॉज ही इज वेरी वेरी फैसिनेटेड अबाउट द कमराडरी ऑफ डीएमईटी कि वो उनको लगता है कि वैसी कमराडरी ना कभी जनरली मुझे लगता है कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। वी कैन बी हम तो बायस हो सकते हैं अपनी कमराडरी के लिए बट आई गेस किसी भी प्राइवेट एंटिटी में इतनी कमराडरी नहीं है। चाहे वो एग्जाम्पल हो कि तोलानी ही क्यों ना हो या कोई भी कॉलेज। सो द वे वी reach out to our seniors and our juniors feel free to reach out to us, वो कहीं ना कहीं very strong bond। हाँ, हर इस चेन ऑफ कमांड में कमराडरी में देर आर एलिमेंट्स जो कि चेंज को रिड्यूस करते हैं or there are elements which help, and I guess you are one of those seniors who have always encouraged all the juniors whose life you have touched, and we are very very happy to have you in our lives as well. So the question comes back again that how as a private organization we can give back to an institution which is merchant navy oriented. We produce marine engineers, so we have been discussing क्योंकि जॉब तो दे नहीं सकते हम। So we have an opening where any DMETians who wants to join Eugene can any day, or any of our company can come and join, but the line is different. So his heart won't be in the right place. A fresher is starting, usko ship पे ही जाना है। So my question is, we have been discussing that कि so and he loves working with DMETians. Any DMETians he have seen बोले यार ये तो सब जो भी DMETians से मिल रहे हैं वो सब एमडी ही हो जाते हैं शिपिंग कंपनी के। मतलब कुछ तो अच्छा करते ही होंगे। इन लोग को जमीन पे लेके आते हैं। हाँ, तो वो पाथ कैसे बना सकते हैं हम लोग एक कि एंड हाउ वी कैन गिव बैक एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू यंग कैडेट्स। इट्स स्कॉलरशिप तो वैसे ही बहुत है उनके पास, मोर देन दे कैन, बट वी कीप गिविंग बैक टू कम्युनिटी। बट एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, वेरी बीइंग इम्प्रॉम्प्टू। see, I would still say it's not that all the alumni of DMT want to go to sea. As time passes, the numbers are increasing slowly, where people don't want to go to sea even for a short while. So maybe those people could be helped in some way to settle ashore. That's number one. Number two is we have to, the biggest how you can give back is by mentoring. You see, at that age between 17, 18, 21, 22, you're very vulnerable. Your thoughts may not be very clear. So mentoring is another way in which all alumni can give back to DMET. Whether it's through a formal mentorship program, whether it is, well, as I do, anybody who comes, he talks to me, I tell him to talk to keep calling me, keep in touch, and so you help him along in his life. It's like that. Mentoring is one way in which you can definitely give back without any cost to yourself except effort and time. वो तो मुझे लगता है सबसे महंगा होता है।
उसमें थोड़ा घुसना पड़ता है। टाइम टेक्स, हम्म, आप अगर किसी की लाइफ की प्रॉब्लम में जाओगे ना, तो इट टेक्स 6-8 hours ऑफ योर लाइफ आउट, कि Well, जहाँ पे आप, ठीक है। मेरे साइज क्या होता है कि आई पुट माई सेल्फ इन टू देयर शूज, एंड कई बार ना आई एम वेरी वेरी बॉदर्ड अबाउट, तो मेरे सारे काम खराब हो जाते हैं। हम्म, तो जनरली हो सकता है एज के साथ वो विजडम आ जाती हो, यू कंपार्टमेंटलाइज, पेशेंस आ जाती है, थोड़ी पेशेंस आ जाती है। कंपार्टमेंटलाइज दोस थिंग्स, एंड देन यू वांट टू टीच द यंग जनरेशन, या जो कि बहुत नेचुरल नहीं आता लोगों में, एंड यू टू बी वेरी पेशेंट, क्योंकि मिलेनियल से जब जेंजी हो गए हैं तो जेंजी अलग ही मोड पे रहते हैं, दे विल नेवर लिसन टू योर एडवाइस, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो यू हैव टू टीच देम इन अ डिफरेंट द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। सो एंड द सेम क्वेश्चन comes to, you are working with team of very very young people apart from the leadership, जहाँ बहुत straight from college आ गए हैं लोग सीधे, and they are into line of fire. So what advice you can give for people who want to directly come to a sure job to a corporate company like Eugen? तो क्या एडवाइस होती है? क्योंकि जनरली मैं तो सबसे बोलता हूँ कि यार कुछ तो रॉकेट साइंस होता नहीं है, इवन रॉकेट बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, पैसा दोगे तो वही बना देंगे हम। सो बट द द मेरे हिसाब से लगता है कि अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग जहाँ पे वी नीड टू वर्क ऑन यंगर जनरेशन, जो कि हम लोग को सिखा दी गई थी। अभी इफ यंगर जनरेशन इज फेलिंग, वो भी हमारी फॉल्ट है, तो वी नीड टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू अवर जूनियर्स टू टीच देम, ट्रेन फ्यू थिंग्स। तो आपको क्या लगता है किस चीज पे एज अ सीनियर और लीडरशिप पोजीशन पे लोगों को काम करना चाहिए, और जूनियर्स को क्या सीखना चाहिए कि कुछ चीजें हो जो 4-5 चीज हो जो उनको लाइफ लॉन्ग काम? देखो, मुझे लगता है जो करियर स्टार्ट कर रहा था, गाय हु इज कमिंग फ्रॉम लाइक कॉलेज टू डायरेक्टली वो अपने कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए बड़ी, अपार्ट फ्रॉम स्किल्स और कम्युनिकेशन, उससे ज़्यादा कुछ फैक्टर्स हैं जो एक रोल प्ले करता है। सो उसका एक एज ए एम्प्लॉई या एज ए लाइक व्हेन यू जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन ना, सो उसकी इंटीग्रिटी, उसका डेडिकेशन, उसका पैशन, उसके ड्रीम्स, वो सब बहुत मैटर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये कहता हूँ कि जो कॉलेज पास आउट मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, उन दोनों के अंदर ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक की डेडिकेशन है, जील है, ही वांट टू बी डू, वो अपने काम से काम रखता है। दूसरे वाले का क्या है कि ही वांट्स टू बी टाइम पास, वो आता है ऑफिस, टाइम उतना ही लगाता है, बट उसका फोकस, ध्यान कहीं और होता है। अब उसको डाउन द लाइन अगर 5 to 10 ईयर्स में देखोगे, उन दोनों के करियर के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो बिकॉज सेम बैकग्राउंड से आए हैं, सेम कॉलेज से भी आए, इनफैक्ट सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, सेम मेंटरशिप में काम किया है, बट थिंग इज दैट कि जो इंटरनली जो आपकी चीजें हैं ना, वो आपको किसी ट्रेनिंग में या किसी बुक में नहीं पढ़ाई जा सकती, और वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम, मतलब मेरा बड़ा सिंपली मानना है कि आपकी क्या कम्युनिकेशन है, क्या नॉलेज है, क्या पर्सनालिटी है, ये सब सेकेंडरी है। अगर यू हैव ए जील, यू हैव ए पैशन, यू हैव ए डेडिकेशन, सो आप सब कुछ गेन कर सकते हो, सब कुछ लर्न कर सकते हो। बट इफ वाइस वर्सा, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर आपका काम करने का जील नहीं है, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, तो डाउन द लाइन ये सारी चीज़ें आपकी फिनिश हो जाएंगी एंड यू विल बी वैनिस्ड। एब्सोल्युटली। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, बट विल बी रैपिंग अप इट वेरी क्विकली. You have written books as well, if I'm right. Book. Books, book. Book. So ये थोड़ा उस बुक के बारे में बताइए. आई विश आई गॉट द बुक टुडे, ऐसे करके दिखा भी देता। नहीं, आई हैव ऑलवेज लव्ड रीडिंग। मैं 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा था, टेम्पनी स्कूल विशाखापट्टनम में। बिलीव मी, इन द 11th and 12th आई रेड 200 बुक्स, नॉवेल्स, नॉट स्टडी बुक्स, नॉवेल्स. That is the extent of my passion for reading, and I always knew that one day I will write a book. तो जब नेवी में आया, आई रोट वन आर्टिकल हियर, वन शॉर्ट स्टोरी हियर, थोड़ा बहुत लिखता गया. नेवल मैगजीन्स में पब्लिश होती थी, एंड आई ऑलवेज केप्ट, इवन माय फर्स्ट 1991-92 में जो पहली आर्टिकल लिखा मैंने, आई केप्ट इट, knowing that one day I will publish a book. ओके, So over the years मैंने कलेक्ट किया, and finally when I retired from MDL in 2021, I retired, and 22 में जाके, 23 में जाके, I think finally I could publish my book. It is just a short book of 60-65 pages, 45 minutes में you can read it. It is light,
and it is humorous. Humor is very important in life. It can change the complete circumstances uh, of life, and it can improve your life by a large degree. In fact, one incident about humor. When I was in Mazgon Docks, I was in planning department का head था, and the second boat was to be made ready, and उसमें प्रॉब्लम हो रहे थे. तो इट्स सो ऐसा हो गया था कि people were very little demoralized. So every day morning I made it my job. I would open the door of the porter cabin and अग्रवाल साहब आ गए and one joke. तो मैं actually घर से एक joke लाता था. And people started waiting for it कि भाई अब joke होगी and then they should feel better. You know, that is the importance of wit and humor in life. I'm just telling you okay, how it can change the complete scenario. So my book is humorous basically. Crow's Nest. From the Crow's Nest, Memories, Musing and Mirth. Just a collection of short articles. तो मुझे लगता है सबकी लाइफ जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रहती है कि उस पे आप अपनी लाइफ को इतना लार्ज जरूर बनाओ कि एक किताब जरूर लिखी जा सके उस पे. सो शीशराम जी, आप कभी सोचते हो कि आपकी लाइफ पे कभी किताब आप लिखो खुद या कोई लिखे? जस्ट अभी तक तो नहीं सोचा है. अभी नहीं सोचा. Being a like सो फाइनल सेगमेंट, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सेम क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, कि व्हाट इज एडवाइस, वन एडवाइस, एक एडवाइस अगर देनी हो यंग जनरेशन, because it's all about mentorship. Podcast we basically, I think we are shooting it for younger generation only, so that they can actually learn from what you have achieved or what Sheesh has achieved, and maybe they can do better than us. So one advice, बहुत ज्यादा एडवाइस कर देंगे तो एक एडवाइस जो आप चाहते हो कि एक एडवाइस यंग जनरेशन फॉलो करे आंख बंद करके, वो एक एडवाइस क्या होगी आपकी? अगर एक ही एडवाइस देनी है तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जो आपका धर्म है आप वो करो. आप जस्ट कीप डूइंग योर, अपने कर्म करते जाओ, फल की मत सोचो. जो अपना धर्म है वो करते जाओ. आप उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. यू विल डू द राइट थिंग. आप बिल्कुल ठीक करते रहोगे. अपना धर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो. I guess younger generation should learn this, a very Gita inspired whatever legacy and wisdom from Gaurav sir. Sheesh, एक advice young generation के लिए who look up to you and who want to be like you or maybe someday do better than you, वो एक advice क्या होगी? I think आपका फोकस, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट. आपका फोकस कि वट एवर द गोल और अचीवमेंट यू वांट इन करियर, उसको फिक्स करिए, उस पर फोकस करिए, सारी एनर्जी को उसी फोकस के या उसी टारगेट के ओरिएंटेड लेकर के चलिए. आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग. So focus, the next answer is, ये मैं सबको बोलता हूँ, काफी कॉर्पोरेट में, स्टार्टअप वर्ल्ड में मेरा क्वेश्चन होता है कि काफी लोग 6-6 महीने पर जॉब चेंज कर देते हैं. वो रिज्यूमे हमारे पास से यहाँ चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं भाई फोकस करके एक कंपनी में तो काम ही नहीं कर पा रहा. और हमारी कंपनी कौन सा बेटर हो जाएगी जब साफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोइंग स्टेज ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स आर सेम, फर्स्ट प्रिंसिपल्स आर सेम, प्रॉब्लम उतनी ही होती है वहां पे. अगर आपका फोकस नहीं है तो हर ऑर्गेनाइजेशन पे आपको जाके खराब लगेगा. सो आई गेस दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप थोड़ा फोकस रहो लाइफ में एंड कर्म करते रहो. ये दोनों चीज अगर कर लोगे तो आई गेस you might do better than both of us get sitting here, and that is what we want. Why not? हमसे अच्छा करो. अब थोड़ा सा फन एलिमेंट, वन वर्ड आंसर करना है, ठीक है? और वो कुछ भी हो सकता है वो. तो दोनों ही शादीशुदा हैं कि बीवियां भी देख रही हैं पॉडकास्ट, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. कॉलेज निकनेम. जी, कॉलेज निकनेम शीश. शीश. फेवरेट फूड. फेवरेट फ्रूट. हाँ, फूड. फूड. ओह, इट वाज चिली चिकन. बहुत फेवरेट फूड. आई एम वेजिटेरियन गाय, तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन मिलता है, और पनीर का ऑप्शन है. फर्स्ट गर्लफ्रेंड.
नेम फर्स्ट गर्लफ्रेंड नेम। अरे ये तो ओ भाई, ये तो तुलिका। ये क्या वाइफ का दे रहा है? So, आपकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो तो शीश सर की लव मैरिज हुई है, तो उनकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम वही। कुछ वही था लग रहा है। अब तो वही है। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी, अब सब कुछ करके देखोगे तो वेर ईगल्स डेयर। ईगल्स डेयर। वेर ईगल्स डेयर, इट वाज अमेजिंग मूवी। आपकी फेवरेट मूवी? तो स्पेसिफिक नाम तो आई कैन नॉट टेल यू, बट जनरली आई लाइक द मूवीज जो रियल स्टोरी या बायोग्राफीज आर लाइक, आई प्रेफर दैट ना। क्वेश्चन मेरा सिंपल है, जब गोवा सुनते हो तो वन वर्ड दैट कम्स इन योर माइंड? बीचेस। बीचेस। इनका आंसर पता है। गोवा सुनते हैं तो पहला वर्ड आता है यूजे। आना भी चाहिए। अगर पहला वर्ड which comes to your mind when you word dedication, डेडिकेशन मैंने बोला, द फर्स्ट द नेक्स्ट वर्ड which comes to your mind, किसी के आदमी का नाम लेना है। माय फादर। डेडिकेशन अपना नाम नहीं ले सकते आप, किसी और के लेना है। नहीं, डेफिनेटली लाइक अगर मैं डेडिकेशन की बात करता हूँ तो मतलब विद इन माई टीम देर, मतलब माई इंटायर टीम इज डेडिकेटेड ना, तो मतलब वी हैव डेवलप ए कल्चर जहाँ मतलब मोर मैक्सिमम टीम इज डेडिकेटेड ना। हाँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है यहाँ तो। यू कैन से। बेस्ट डिसीजन एवर मेड, वन वर्ड से थोड़ा ऊपर, सबसे बेस्ट डिसीजन लाइफ का अभी तक क्या? बिकमिंग अ फौजी। फॉर आपका बेस्ट डिसीजन एवर मेड? देखो मुझे लगता है आई नेवर टेक बेस्ट डिसीजन, आई यूजुअली टेक डिसीजन एंड ट्राई टू मेक दैट बेस्ट। ओके, सो वो डिसीजन क्या था ऐसा जो बेस्ट बन गया? सारे डिसीजन अच्छे थे। अच्छा, मतलब मुझे लगता है हर डिसीजन को कभी बहुत ज्यादा रिसर्च करके आई नेवर टेक अ डिसीजन, डू दैट बेसिक ड्यू डिलिजेंस और डिसीजन लेते हैं, देन उस पे आप फोकस करके काम करोगे तो दैट डिसीजन विल बी इन योर फेवर। योर फेवरेट बीच इन गोवा? बुकमालो बीच। छोटी सी है लेकिन बढ़िया है। आपका सर? मैंड्रेम। माइंड्रेम। या तो जो लोग देख रहे हैं, माइंड्रेम में हमारे 13 विला हैं। ऑलवेज first project that we delivered, it's already delivered अच्छा। 13 villas. And on that note, we will finish the podcast here. And I hope the young generation and maybe the older generation, everyone watching, have enjoyed this. And thank you guys. Thank you for joining. थैंक यू प्रतीक। And we'll have some fun time as well. And थैंक thank यू, you, Ashish. थैंक यू, Thank you, joining. थैंक यू।
कि क्या अभी भी कॉलेज से कुछ दोस्त हैं जो पूरी ज़िंदगी के दोस्त बन गए? कि थोड़ा मुझे लगता है कि बाकी कॉलेजेस में थोड़ा डिफरेंट रहता है। देखिए स्कूल और कॉलेज की लाइफ डेफिनेटली उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। द डेज वो एक अलग ही दुनिया होती है, क्योंकि एक्चुअली वो जो फ्रेंडशिप थी ना, दैट वाज ए सेल्फलेस फ्रेंडशिप। उस टाइम पे हमें किसी से कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, वो सब मायने नहीं रखती थी वो चीजें ना। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। पर मैं जो लोग ये देख रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा कि अहिंसा फॉलो करें। इट इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग, ठीक? आई एग्री। एंड बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ का, वी हैव डिस्कस दिस इन लॉट ऑफ 2 टाइम्स आई गेस। मैंने 2 बार रिपीटेडली आपसे क्वेश्चन पूछा था, ट्राइंग टू फाइंड अ डिफरेंट आंसर। मैं तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाई डिड यू स्विच फ्रॉम मर्चेंट नेवी टू इंडियन नेवी, और इंडियन कितने साल सेलिंग के बाद ये डिसीजन आपने लिया? उन दिनों प्रतीक 18 मंथ्स सी टाइम वाज रिक्वायर्ड फॉर सेकंड एग्जाम, फोर्थ क्लास एग्जामिनेशन नहीं था। तो मैंने ऑलमोस्ट 16.5 months कर लिए थे मेरे फर्स्ट जहाज पे। एंड व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, माय फादर जस्ट टोल्ड मी जस्ट गो फॉर इट, डोंट ज्वाइन, जस्ट गो फॉर इट। ही अप्लाइड ऑन माय बिहाफ। ठीक है, तो अब फादर ने बोला तो जानना चाहता हूँ कि अभी शीशराम जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, मैं स्टार्टअप वर्ल्ड से हूँ, स्टार्टअप स्लैश कॉर्पोरेट, आप नेवल बैकग्राउंड से हो, तो क्या डिफरेंस, आप कॉर्पोरेट के साथ भी काम करते हो, सो हाउ, क्या डिफरेंस है कि फौज कैसे काम करती है, फौजी कैसे काम करता है, टेकिंग एग्जांपल ऑफ सुनामी ब्यूरोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट, क्या डिफरेंस आपको लगता है कि दोनों में, अगर वहां से कुछ लेसन हम लोग सीख लें तो कॉर्पोरेट वर्क भी थ्राइव करने लगेगा बहुत? सी आई में आप बोलोगे क्योंकि मैं फौजी हूँ, हाँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि जो जिसको बोलते हैं ना बैस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी, आज जितने भी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं उनमें से एक ही पिलर आज कंट्री को बचा रहा है, दैट इज द फौज। थोड़ा सा मुझे आशीष राम जी भी डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि भाई सामने वाले को बहुत ज्यादा सच बताते हैं, जबकि मैंने रियल स्टेट में इतना सच बोलने वाला बंदा भी नहीं देखा। कई बार मुझे भी घबराहट हो जाती है उन सच से, एंड मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सेल्स आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हो अपनी, सच बता बता। सो जनरली ये क्या वही गांव की परवरिश है जो बोलती है यार सच बोले काम करते हैं, क्या कि रियल एस्टेट में क्या होता है कि आप, इवन ऑडियंस इज वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड व्हेन दे आर टेकिंग डिसीजन, तो झूठ बोल के तो आपको पता है कि 5 मिनट पे गूगल कर लेगा तो सब पता चल जाएगा कि क्या रीजन है कि तो बेसिकली ये वैल्यूज ना, ये एक दिन या 2 दिन की नहीं होती, ये आपको मतलब इट्स ईयर्स, जब से आप कहाँ से आपकी परवरिश हुई है, तो बेसिकली वो वैल्यूज वहीं से आपके अंदर, यू हैव टू बी इनकॉर्पोरेट दैट ना, तो वो तब से स्टार्ट होती है। वो नेशन के लिए हो, एंड आई थिंक entrepreneurs आर also like soldiers, we are building the nation from within, ओ यस, and not देयर इज fighting नो the डाउट। war, but we are bringing in capital, we are paying taxes, we are making sure कि a nation has enough wealth to uh, fight. Coming back to very interesting question, that Goa has lot of rich, very rich naval history. मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने भी अभी बोला कि आप 2 साल गोवा में थे, तो इन जनरल की कुछ हम जान चाहते हैं, कुछ समथिंग एक्साइटिंग अबाउट दैट हिस्ट्री, बिकॉज अवर प्रोजेक्ट इज इन गोवा, सो दैट्स व्हाई। देखो, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्ट, द बेस्ट 2.5 years ऑफ माई लाइफ वॉज इन गोवा। एक तो जगह वैसी है, ओके, प्लस मे बी माई एंड पार्ट ऑफ ये मैं कुछ जानना चाहता हूँ, इफ सो वी हैव बीन डूइंग आवर ओन रिसर्च एंड रियल एस्टेट रिसर्च अलग चीज है, लॉट ऑफ shipping related investment is coming in Goa right now. यस। मेरा क्वेश्चन है कि कई बार तो हमारे भी समझ में नहीं आता why it is happening. So my question is why it is happening, and that belt only, चाहे वो कारवार की बेल्ट हो, उससे रिलेटेड पूरा गोवा तक, क्या इंडिया अपना शिप बना रहा है, बनाएगा? So why the investments, and lot of significant investment is coming from allied shipping companies, जो डायरेक्टली शिप में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंस,
has invested in 600 crores, I guess, if I'm right. Siemens has a very big plant in Varna, Goa. Okay. Varna. And a lot of companies are coming up there because Goa government is giving a lot of incentives. In the new shipbuilding policy of the government, which has been declared just recently, the full west coast, right, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, all of them will be benefited. And Goa में culture तो है ही shipping का. Shipyards are there in Goa. Goa shipyard is there. If you go down the coast, Chogle. Chogle is there. I've forgotten. Modest is there. Okay. Damodar is there. So many shipyards are there along the coast. If you go down, Waterway shipyard is there in Hubli. So sir, आपने स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया है इंडिया के. So if it is okay to share something about your learnings from that program and what was that program? See, the Scorpion 6 submarines were built by Mazagon Dock in collaboration with Naval Group of France. मेरा क्वेश्चन भी यही है शीशराम जी से अगला, क्योंकि सो एज ए आउटसाइडर अगर मैं देखूं, गोवा में ही फोर्थ सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट खोल दिया गया. मोपा एयरपोर्ट इज द, एंड वो कहीं भी हो सकता था, वो बेंगलोर भी हो सकता था. एक बड़ा एयरपोर्ट चाहिए था, हर सिटी को चाहिए कि एक तो क्यों खोला गया गोवा में इतना बड़ा एयरपोर्ट. नेक्स्ट है कि you being a realtor, you also have idea कि lot of shipping related investment is coming in. People are buying land in bulk, shipping companies. So थोड़ा क्या इनसाइड स्टोरी आप बता सकते हो कि क्या हो रहा है वहां पे, देखिए जस्ट कि जो अभी तक नहीं पता है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनके लिए. बेसिकली सी गोवा इज नोन फॉर टूरिज्म. सो टूरिज्म को अगर आपको डेवलप करना है, आपको ट्रैवल्स इंक्रीज करना है, सो आपको कनेक्टिविटी का फैक्टर माइंड में रखना होगा. हाउ डू यू सी यूजेन इन इंडिया स्टोरी एंड ग्लोबल स्टोरी? क्या देखते हैं हम लोग कि अगर 10 साल बाद अगर देखें तो इंडिया विल बी प्राउड ऑफ यूजेन स्टोरी? देखिए सी एज ए एंटरप्रेन्योर, हर एंटरप्रेन्योर हैव सम ड्रीम्स. सो मुझे भी लगता है, या मैं भी, आई हैव आल्सो द ड्रीम्स कि रियल एस्टेट के अंदर लेट्स क्रिएट सम हिस्ट्री